خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ معتکفین کے تاثرات الحمدللہ ہم چلاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ میں دنیا کی لگن میں مصروف تھا، ادھر چلے گئے سیل سپاٹا کرنے، ادھر چل گئے، رات کو آتا تھا 12-1 بجے گھر پہ سو جاتا تھا بس۔ جب وہ سو جاتے تھے چھپ کے آتا تھا، دیکھتا بستر لگا ہوا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، سو گیا۔ پہلے تو میں آتا نہیں تھا یہاں پہ، گھر والوں نے زور لگایا کہ آپ جاؤ۔ کیا والدین نے فیضان مدینہ دیکھا ہوا ہے؟ وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، روزانہ مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، والدہ، میری سسٹریں، چھوٹا بھائی۔ یہاں پہ آیا پہلے دن میرا دل نہیں لگا، ایک باہر گھومنے والا انسان ہے وہ نہیں اس کا دل لگتا، پہلے دن نہیں لگا۔ جب میں نے اندر بیٹھا مدنی مذاکرہ سنا، پھر میرا دل آہستہ جیسے ڈھلنا ہو جاتا ہے شروع، تو پھر میں نے اپنے کزن کو بولا بھی مجھے یہ تم دو اور مجھے قرآن بھی سکھاؤ۔ اب تقریباً 8 میرے دوست فرینڈ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کی یہی اپنی سوچ ہے کہ پورا یعنی کہ مہینہ ہم لوگ یہاں پہ رمضان مکمل رکھ کے پھر اپنے علاقے پہ جائیں۔ یہاں پہ جو ہے نا اے سی لگا ہوا ہے، ہر کسی کو ہر طرح کا سکون ملتا ہے۔ مینجمنٹ ماشاءاللہ سے کافی پرفیکٹ ہے، جو ہے مطلب کھانا کھلانے میں، سحری افطاری میں، ہر طرح سے، اور صفائی کے لحاظ سے بھی ایسے لگتا ہے جیسے مطلب ایک فیملی سسٹم ہے جیسے بنا ہوا نا۔ کویت سے 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں الحمدللہ اکاؤنٹس کی جاب کرتا ہوں کویت میں نا۔ دنیا دیکھ لی ہے، دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں بتائیں گے، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ ہم سے بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں، ٹائم دی اٹھاتے ہیں، ٹائم دی سارے حلقے میں محبت سے سمجھاتے ہیں۔ اگر ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں بھی تو پھر بھی وہ پیار سے سمجھاتے ہیں کہ اس کو ایسے لے کے چلنا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں جائیں گے کیسا ماحول ہوگا، کیسا کچھ ہوگا۔ اندر آیا ہوں، میں نے دیکھا سب اسلامی بھائیوں کو کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے بولتے ہیں۔ ادھر آیا مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور میں نے یہ بھی نیت کی ہوا ہے کہ جتنی دیر تک زندگی ہے انشاءاللہ ہر ماہ کے لیے میں ادھر اعتکاف پہ آیا کروں گا۔ میری والدہ نے میرا ذہن بنوایا، میری والدہ ہر ٹائم یہی مدنی چینل دیکھتی ہے۔ یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، مرشد پاک کا در بھی دیکھ رہے ہیں، مرشد پاک کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسجد کی صفائی بھی خود ہم نے کی ہے، جو آپ نے شاپر دی ہے مرشد پاک نے۔ مسجد کے کنکر بھی اٹھا سکتے ہیں، اور بال بھی گرے ہوئے وہ بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ پہلے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، ادھر آ کے یہ سب کچھ پتہ چلا۔ مدنی چینل دیکھتا رہتا تھا، شوق اسی سے بڑا، پہلے تو مکہ پاک میں، پھر مدینے پاک میں، تیسرے نمبر پہ دنیا میں ادھر سکون ہے۔ میں مدنی چینل گھر میں دیکھتا تھا، تو پھر ادھر سے شوق بڑھ گیا، اسکول کاروبار سب کو چھوڑ کر ابھی رمضان شریف میں آیا ہوں۔ غسل کے فرائض، وضو کے بھی فرائض سیکھے ہوں، آگے آگے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے کو غسل کا طریقہ نہیں پتا تھا، میں سمجھتا تھا نہانے سے غسل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں آ کے میرے کو ایک ایک چیز کا پتہ چلا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب جیسے ہی سنا تو سب سے پہلے میں نے وہ غسل اپنا صحیح کرا۔ یہاں پر میں نے فرائض سیکھے، غسل کا نہیں پتا تھا، غسل سیکھا، قاعدہ پڑھا، قاعدے کے زبر زیر پیش کا نہیں پتا تھا، لیکن میرے کو اب پتہ چلا کہ میں کتنی غلطیاں کرتا تھا اس کے اندر، نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن میں ماشاءاللہ ہم 15 سورت قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ قاعدہ جیسے قرآن پاک تو میں پہلے بھی پڑھا ہوا ہوں، لیکن ہم پڑھے ہیں گھروں میں پڑھے ہیں، ادھر جو بتاتے ہیں الف با جیسے ہے ان میں اور جیسے ہم پڑھے ہیں بہت فرق ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا ہے ادھر سے ادھر تک، صحیح ہے، اور نمبر 2 ادھر تک ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 سر کا چوتھا حصہ مسح کرنا ہے، اور چوتھا پیر ادھر تک دھونا ہے، یہ ہڈی تک۔ الحمدللہ یہ لائف بہت ہی اچھی ہے، پہلے تو غفلت میں سوئے ہوئے تھے، جب سے یہ ادھر آئے ہوئے ہیں ہمیں فرض علوم کا پتہ چلا کیا کیا ہے۔ کبھی میں نے دھیان نہیں دیا نماز روزے کی طرف،
ये मेरा पहला साल ऐसा है जो मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हूँ और रोज़े भी रख रहा हूँ मेरे पीर मुर्शिद की करम से, वरना इससे पहले मैंने कभी 5 वक्त की नमाज क्या 1 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब से मदनी मोल में आया हूँ तो मैं नमाज रोज़े की पाबंदी कर रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। मैं सच्चे दिल से नियत करता हूँ जो मेरी कज़ा नमाजें छूट गई हैं वो मैं अपनी फिर से दोहराऊंगा और मैं अल्लाह पाक से सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद कोई नमाज मेरी कज़ा नहीं होगी, बाजमात नमाज पढ़ा करूँगा। पीर मुर्शिद की मदनी मुज़ाकरे सुन के इंशाल्लाह मैंने इमामे की भी नियत करी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने पीर मुर्शिद के हाथ से इमामा बनवा के जाऊँगा यहाँ से। अजीब बात है ये है कि लोग कहते हैं कि दावत इस्लामी ऐसे ऐसे वगैरह कहती थी, अभी यहाँ पे आए तो माशाअल्लाह देख रहे हैं कि जब जिसी को इश्क मुस्तफ़ा चाहिए तो वो दावत इस्लामी में आए। पहले हमारे यहाँ की बंद थी, अभी खुल गए, यही है। सुभान अल्लाह, क्यों मज़ा नहीं आता। मैं पहले किसी की मुरीद नहीं थी, लेकिन अभी जब इधर आया मैं साईं अहले सुन्नत इलियास अत्तारी उनकी मुरीद बनी। मैं जो बहुत बुरे कामों में पड़ गया था, पार्किंग वगैरह में जाना, तो दोस्त वगैरह उनकी गलत सोबत, मेरे वालिदैन ने ना हुक्म दिया है कि अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा कर ले, अपने पीर साहब के बारगाह में जाओ, इंशाल्लाह वहाँ अपने गुनाहों की तौबा भी करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे पता चला है कि इंसान जो है ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। पहले हकीकत बात यह कि मैं कुछ गलत काम 2 नंबर काम करता था। जब बाबा का ये वीडियो बयान चला तो मैंने उस दिन से ही तौबा किया कि या अल्लाह मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। पहले तो पैसे बहुत हुआ करते थे लेकिन अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ मजदूरी 500 कमाता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। इसके बाद दिल में ऐसा ख्याल आया कि मैं 1 महीना जाऊँगा कैसे भी करके। फिर मैंने मजदूरी शुरू किया, बहुत कुछ पैसे अब घर पे दे के आया हूँ। उधर कलात में ऐसा उधर फिरता था, उस गली में उस गली में, नशा भी करता था जब छोटा था उस टाइम से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मदनी वो दावत इस्लामी का प्यार और वो हुजूर की शान हमारे दिल में घुस गया है, तब से मैं छोड़ दिया सारे नशा मशा वगैरह सब कुछ। वहाँ पर मैं बहुत गंदी आदत में पड़ गया था, जैसे रोज़ नशा, घर में मार पीट, पैसे लेने के लिए ये वो, जंजीरों में भी बांध के रखा। जो दिल के जो है आपको क्लियर बता रहा हूँ मैं, बहुत परेशान थे घर वाले, मेरे वालिद भी बहुत परेशान थे। नशा ऐसा करता था कि मुझे चाहिए, बस सुबह उठने के साथ मुझे ये नशा चाहिए था। अगर मैं नहीं पीता था तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन यहाँ आके मुझे पता ही नहीं चला कि कैसी तकलीफ़ है क्या है, बस ऐसे ही गुजर रही है माशाल्लाह से। पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नशा करता था, जान छूट गई। ये है कि थोड़ा बहुत टांगों में दर्द हो रहा था लेकिन अब सेट हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया हूँ। वालिदा से बात हुई है, वो बहुत खुश है और मैंने कहा भी तो बोलते हैं कि ऐसी हालत में नहीं तंग नहीं करना। मैंने बोला नहीं, ऐसा ज़हन नहीं बना हुआ है मेरा, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अम्मी बहुत खुश है मेरी वालिदा मुझसे ना, रो रही भी थी, मेरा वालिद भी रो रहे थे उस दिन। हम रोज़ा रखते थे, बाज़ारों में, ड्रामों में, टीवी में अपना टाइम पास करते थे। अब रोज़ा पता ही नहीं चलता है। 40-45 साल उम्र है, पहले भी बहुत सारी दफ़े रखे हैं, लेकिन जो रोज़ा रखने का सही तरीका जो है वो यहाँ पे आकर इत्काफ में बैठकर महसूस हो रहा है। मैंने आज से पहले जो ना गुर्दे की तकलीफ रोज़े तक नहीं रखे, आज तक 2, 4, 10, 15 रख लिए, पूरे कभी नहीं रखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके मुझे किसी चीज़ की मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई गुर्दे में। हालांकि है मेरे साथ, मेरे लेफ्ट गुर्दे में तकरीबन कोई 16 पथरियाँ हैं। हाँ, मेरे पास अगर कोई लेना चाहे तो मेरे रिकॉर्ड में बस कि 16 पथरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े 3 दिन से रख रहा हूँ। और आज है ना अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत में मैंने खजूर रोटी से सहरी की है। खजूर रोटी भी आज मुझे ना टिक्के रोटी से ज़्यादा अच्छी लगी है। ये मेरा अल्लाह का वाय मुझे। आज का जो बयान सुना आपने, सुनकर क्या ज़हन बनता है? इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि घर पे हम वालिदैन को कॉल करें और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनसे माफ़ी मांगे। घर पे जुमे की अभी कॉल की थी तो घर पे जुमे की मुबारकबाद दिए घर वालों को। जब आप उनको फ़ोन करके बता रहे थे कि मुझे माफ़ कर दे और जुमा मुबारक, तो उनके क्या रिस्पॉन्स था? बस रोने लग गए थे। मेरा ज़हन बहुत बना है कि वालिदा से बिल्कुल माफ़ी मांगनी है और आज एहसास हो रहा है कि वाकई कितना गलत करके आ चुके हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह आज एहसास हुआ है और इंशाल्लाह बिल्कुल मांगेंगे, तकरीबन पूरे घर से ही माफ़ी मांगेंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। और माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया हूँ, निगरान शुरा का बयान सुना है तो निगरान शुरा ने प्रैक्टिकली तौर पे बताया कि सफाई जो है इस तरह
की जाती है। जैसे हाजी इमरान अतारी ने बताया कि ये अपनी सफाई भी खुद करें, कपड़े भी साफ करें, दाढ़ी भी साफ करें, बाल भी साफ करें, तेल भी लगाया करें, लेकिन उधर किसी ने नहीं बताया कि तेल ऐसे लगाते हैं और अपनी सफाई ऐसे करते हैं, नहाना भी ऐसे है, हर टाइम 24 घंटे सफाई करनी चाहिए। फरमाया था मेरी वालदा तो है नहीं, वालिद हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, जब यहाँ से जाएंगे तो फिर जी भर के माफ़ी मांग लेंगे। जी भर के से मुराद क्या मतलब? मेरे वालिद मुझसे नाराज है, माफी मांगेंगे उनसे, राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बहुत गुनाहगार आदमी था, बस अल्लाह ने मेरे को यहाँ ला के खड़ा करा। कभी जिंदगी में मेरे ज़हनों को मान भी नहीं था मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। बस अल्लाह से हर टाइम माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। रिसाला ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 3 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 6। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज़ की कि रब तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1440 सीने हिजरी के रमज़ान मुबारक का अशर रहमतें लुटा रहा है और आज उसकी 5वीं रात आ पहुंची है। आधा अशर रहमत पूरा होने लगा है, हमने कुछ भी नहीं किया, सारे औकात गफलत में गुजर गए। अल्लाह करीम बकिया रमज़ान की कदर नसीब फरमाए, पिछली नाकदरियाँ मुआफ कर दे। मदनी मुज़ाकरे में खुसूसी शिरकत है अतराफ पाक मज़हरी काबीना मुजफ्फरपुर जनूबी वां बिछड़ा पंजाब। अब सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब अभी भी सवाब दे पाऊँ जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाये करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इबादत के साथ साथ अच्छे काम सर अंजाम देने में भी बाज़ औक़ात हम इखलास पैदा नहीं कर पाते। आपसे अर्ज़ है, ये इरशाद फरमाएं कि हम अपने अंदर इखलास कैसे पैदा कर सकते हैं। ये गौर करें कि अज्र देने वाला कौन है, बंदा या रब। अगर हम बंदे के लिए काम करेंगे तो बंदा क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा, खाली बस वो कि बहुत बहुत तो तारीफ कर देगा या पसंदीदा नजर से देख लेगा, वाह कर देगा, खलास। अगर बंदे के लिए काम किया तो नेक काम इबादत, क़यामत के दिन पुकारा जाएगा ओ रियाकार ओ मक्कार। तो इस तरह कितनी तजलील होगी। कहा जाएगा कि तू अपना अजर उससे ले जिसके लिए अमल किया, जिसके लिए अमल किया है। तो ये जो दिखावा करते हैं इखलास के बगैर, रिया करते हैं, वो बड़े नुकसान में रहते हैं। तो इसलिए वो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे, मुखलिसाना। मुखलिस वही है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे, इसमें बंदे की रज़ा शामिल ना हो, यानी कि ऐसी बंदे की रज़ा शामिल ना हो जो जिसकी शरीयत ने मुमानत की है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, रियाकारी, इखलास की जिद है रियाकारी, है ना, तो वो उसमें इखलास का भी बयान है। सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, ऐ लोगों अल्लाह के लिए इखलास के साथ अमल करो, क्योंकि अल्लाह पाक वही अमाल कबूल फरमाता है जो उसके लिए इखलास के साथ किए जाते हैं। और ये ना कहो कि ये अमल अल्लाह के लिए और रिश्तेदारी के लिए, न दूसरों को इसमें शामिल मत करो, अल्लाह के लिए खास अमल हो। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं मौलाना साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि गर्म खाना अगर प्लास्टिक के शॉपर में रखा जाए तो वो सेहत के लिए मुज़र है या नहीं? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मेरा सवाल है, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना क्या सही है? प्लास्टिक के बर्तन या शापरों में यही तहकीक तो यही बताते हैं ये लोग साइंसदान वगैरह कि गर्मा गर्म अगर खाना उसमें डालें गर्म, तो इससे वो केमिकल जो इस प्लास्टिक में होते हैं उनमें से बाज ऐसे केमिकल हैं जो बहुत खतरनाक है, वो गर्मी से पिघल कर छूट कर उस ग़िज़ा में मिल जाते हैं और वो फिर पेट में जाकर बीमारियां पैदा करते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई मेडिकेटेड प्लास्टिक भी आता हो, तो सुना है कि आता है, लेकिन बहरहाल लेकिन हर प्लास्टिक तो मेडिकेटेड नहीं होता, फिर धोखे का दौर है। प्लास्टिक में गर्मा गर्म खाने से बचना चाहिए। प्लास्टिक के थाल में भी लोग खाते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में हर चीज़ आती है आजकल, तो मैंने हर चीज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के डिब्बों में आती है गर्मा गर्म। कहीं बाहर से भी अगर किसी को मेहमान ने किसी के घर भेजना होता है तो लोग अब प्लास्टिक के डिब्बों में गर्मा गर्म खाना या जो भी ग़िज़ा वो डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं और भिजवा देते हैं, और अंदर उसको केमिकल का नुकसान। अब बंदा करे क्या, कहीं से आ गया उसको फेंक भी नहीं सकता। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके कि प्लास्टिक के डिब्बों में गर्म खाना, गर्म चाय, प्लास्टिक की थैली में तो गर्म चाय भी प्लास्टिक की थैली में पार्सल आ रही है, उसी वक्त भर के दे देते हैं गर्मा गर्म, ये भी नुकसानदेह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नाम मेरा उबैद है। हम ये मैकेनिक का काम जो करते हैं, अमूमन जो भी कस्टमर आते हैं छोटे काम के ज़्यादा पैसे बता देते हैं, ये जायज़ है नाजायज़ है? इसका आप जवाब दें हमें। आप छोटे से काम के बहुत से पैसे ले लेते हैं। अब ये थोड़ा मुबम सी बात है कि वो अब छोटा है बड़ा है, तो इसमें ये होता है कि जो झूठ ना बोले, धोखा ना करे, और जो आपस में तय हो जाए, तो ये मतलब यानी कि जायज है। अब इसमें होता ये होगा कि काम छोटा होगा ना, तो उसको भी जैसे कोई अपनी गाड़ी लेकर गया, स्कूटर लेकर गया, इसमें पता है कि वो एक धागा बांधेंगे ना तो वो सेट हो जाएगा, या वो तार जोड़ देंगे तो तरकीब बन जाएगी। लेकिन उसको इसने कहना है कि थोड़ा वो स्क्रू के वो पेच घिस गए तो ये तब्दील करना है, और इसमें थोड़ी ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी, और इसकी वो चेन में भी थोड़ा मसला हो गया है, तो ये भी मैं सही करूंगा तो यूं मतलब आपको कल मिल सकती है, अभी नहीं मिल सकती, और इतने इतने पैसे होंगे। और फिर वो जब बंदा जाएगा तो उसने वो धागा बांध देना है या तार जोड़ देना है, और वो फिर ये उसको कल देना है। ये धोखा और झूठ हुआ। वरना साफ साफ बोल दे, भले ये ना बोले कि इसमें धागा बांधना है, तारा बांधना है, वह इंशाल्लाह आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, इतनी रकम होगी, इतना खर्चा होगा, फिर भले उसके सामने ना करे, उसको ना बताए, लेकिन ये कि इस तरह अगर करे ना तो वो हलाल मामला हो सकता है। लेकिन करते नहीं होंगे, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत धोखा देते हैं। बाहर का पुर्जा लगाना पड़ेगा, और ये पुर्जा खराब, वो पुर्जा खराब, कोई खराब वराब होता नहीं होगा, खामा खा मतलब वो उसको मतलब झूठ बोल के वो वही उसी तरह सेट करके दे देते होंगे। तो जो ऐसा करते हैं वो धोखा देते हैं, गुनाह का काम करते हैं।
अपनी रोजी हराम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाद सूरतों में हराम करते हैं, बाद सूरतों में वो गुनाह भरा काम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के जो खाने के हवाले से जो चला था प्लास्टिक के बर्तन वगैरह में, तो अभी एक मैसेज आया है कि फूड ग्रेड प्लास्टिक आता है। तो अभी एक काफ़ी सुलझे हुए इस्लाम भाई ने भेजा है। तो ये कैटेगरी आती होगी फूड ग्रेड प्लास्टिक, मतलब वो ओके है, मगर बकिया जो प्लास्टिक होती है वो कई ऐसे रिसाइकल के तौर पर वो लेते हैं, तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं। फूड ग्रेड का नाम अव्वल तो याद नहीं रहेगा जी, और याद रह भी गया तो इसकी शनाख्त क्या, पहचान क्या। अब ये बेचारे बोलेंगे जाके फूड ग्रेड प्लास्टिक का बर्तन दो, तो वो तो कोई भी टिका देगा, कोई सा उठा के कि ये फूड ग्रेड है। आजकल तो धोखे का दौर है, तो अपने को पहचानो कि फूड ग्रेड होता कैसा है देखने में, तो मतलब काम बने। तो जिन मेहरबानों ने ये पैगाम आती, अगर इसकी पहचान वगैरह भी दे दे ना, तो इससे उम्मत का ज्यादा फायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि नज़र लग गई है, हालांकि नज़र नहीं होती, अपने ही किसी अमल का कोई रद्द अमल होता है। तो इस मामले में क्या फरमाते हैं आप? असल नजर लग गई है, इसकी यकीनी मालूमात तो जरा मुश्किल से होती है। ज़रा कैसे हो यकीनी मालूमात कि नजर लग गई है? अब नजर का लगना तो ये हक है, तो हदीस पाक में नजर तो लग सकती है, लेकिन ये कंफर्म कैसे हो कि नजर ही लगी है? और हर बात में नजर लगती है लोगों को। भाई यूं कुछ भी हो गया, बोले यार किसी की नजर लग गई है, किसी ने कुछ करवा दिया है या असरात है, तो यूं बेचारे फिर खुद अपने ऊपर परेशानी ओढ़ लेते हैं। फिर ये कि इनका जिन जो है ना वो दवा से भाग भी जाता है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर इलाज करते हैं बाज़ वक़्त, तो वो जिन भाग जाते हैं, वो सही हो जाते हैं। इससे पहले वो असरात थे, उसको दवा से सही हो गया, तो दवा से वो जिन थोड़ी भागेगा। तो बहरहाल ये कि जिन का असर भी हो सकता है, जादू भी हो सकता है, नजर भी लग सकती है, लेकिन बात बात पर हमारे यहाँ ये हिसाब किताब है कि नजर, जादू और असरात, और जिस बाबा जी को पूछो आम तौर पे वो ये चीजें बताते हैं। अब खुदा बेहतर जाने कि ये क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा अपना दिल बड़ा रखें, हर बात को इस तरह का ना करें, अपना जो भी इलाज मुआवजा उस पर तवज्जो दें। बेशक उसका रूहानी इलाज भी करें, नजर ना हो तब भी रूहानी इलाज हो सकता है, जादू असरात ना हो तब भी रूहानी इलाज आम बीमारियों का भी होता है। इसमें ये भी होता है कि जैसे कोई बीमार हो गया, तो बीमार होता है तो परहेज करता है, सही हो जाता है। जैसे सही होता है ना, फिर वो बद परहेजी की तरफ चला जाता है, फिर बीमार हो जाता है, फिर नजर लग जाती है, हाँ फिर परहेज करता है, फिर सही हो जाता है। अब ये अपनी परहेजी या ना परहेजी पर गौर करने के बजाय इसके घर से आवाज आती है कि बेटा तुझे तो लगता है नजर है ना, तू बार बार बीमार हो रहा है, मगर वो ये नहीं देख रहे कि ये बार बार बीमार बद परहेजी की वजह से हो रहा है। ये एक बात है। बाज़ वक़्त कारोबारी लोगों को ये होता है कि जनाब हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, तो मेरे आपको ये कहना है कि आप अपने फैसलों पर भी गौर करें। बाज़ वक़्त फैसले के टाइमिंग सही नहीं होते, फैसला सही नहीं होता, ना तजर्बेकारी होती है जिसकी वजह से नुकसान पड़ जाता है, और फिर वो ना तजर्बेकारी को आप कंटिन्यू करते हैं इस वजह से कि वो जनाब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, तो इससे भी नुकसानात की सूरतें बनती हैं। तो अपने हाथों के किए की बाज़ औक़ात ये हमारे साथ चीज़ें होती हैं, और तो इसको हम नज़र बद की तरफ ले जाने में फिर एक नुकसान बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आपकी तवज्जो आपकी ना तजर्बेकारी और आपके गलत फैसले और आपकी बद परहेज़ी से हटकर सिर्फ नज़र बद की तरफ चली गई है, और आप सिर्फ वन साइड होकर चल रहे हैं, तो आपके अपने जो मामला थे उसको दुरुस्त करने की तरफ उमूमन तवज्जो नहीं रहती, और फिर ये बद परहेज़ी, ना तजर्बेकारी और गलत फैसलों की आदत बाकी रहती है, और फिर ये बार बार गलतियाँ होती हैं, बीमारियाँ आती हैं, और आपके जहन में बैठ गया कि मुझे नज़र है। तो असल में नज़र आपने अपने ऊपर डालनी है ताकि आप ये देख सकें कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार आपको ठोकर लग रही है। अच्छी नजर भी तो लगती है जी, हाँ अच्छी नजर भी लगती है।
जैसे कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिदुल खैफ में हज के दिनों में मीना में जो मस्जिदुल खैफ है उसमें सफ़ों में दौरा फरमा रहे थे, ना आना जाना फरमा रहे थे सफ़ों में। किसी ने पूछा तो फरमाया कि मैं किसी अल्लाह वाले की नज़र डलवा रहा हूँ। तो यूं नज़र अच्छी भी है और बुरी भी है। निगाह नबी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह सहाबी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो नज़र अच्छी भी होती है, नज़र बुरी भी होती है। वो आला हज़रत का शेर भी तो है ना, उठ गई जिस तरफ उठ गई, यानी नजर उठ गई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तो काश हम पर निगाह मुस्तफ़ा पड़ जाए। तो बाकायदा इसका तो अरबी शेर मशहूर है, अरबी शेर या रुबाई, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर नजर फरमाइए। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, ऐ अल्लाह के हबीब हमारी फरियाद सुनिए। इन्ननी फी बहर हम मिम मुगरकुन, मैं गमों के दरिया में गरक हो चुका हूँ। खुद यदी सगिलना इश्कालना, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरी मुश्किल आसान कीजिए और मुझे बचा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि दुआए सानी में आपके मामूलात में देखा है कि ये जो रुबाई है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ये आपके मामूलात में देखा है कि आप माशाल्लाह ये जब भी दुआए सानी में शिरकत हुई आपके साथ तो आपने ये फरियाद इस्तिगासा ज़रूर पेश किया है। हाँ, ये बारहा पढ़ा है मैं। सवाल कीजिए। सुना है कि रमजान के आखिरी अशरे में अगर कोई मेहमान भी आ जाए, एक रात भी ठहरे, तो उसका भी फितरा निकालना होगा। इसके बारे में जवाब इरशाद फरमाएं। मेहमान का फितरा मेजबान पर वाजिब नहीं होता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद इसहाक अतारी वहाँ बचरा मियाँ वाली से मेरा सवाल है कि जो हम माह रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं, क्या इसके पढ़ने से सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं? फैज़ान रमज़ान पेज नंबर 159। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो रमज़ान में ईमान के साथ और तलबे सवाब के लिए क़याम करे तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, तरावीह की पाबंदी की बरकत से सारे सगीरा यानी छोटे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह तौबा से और हुकूकुल इबाद यानी बंदों के जो हुकूक हैं अगर वो तलफ किए तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा के साथ हक वाले के मुआफ करने से मुआफ होते हैं। तो यूं तरावी से सगीरा गुनाह मुआफ होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से कुछ सवालात का सिलसिला है। एक सवाल आया है, बाज़ रिश्तेदार हैं, उन्हें अगर इफ्तार पर दावत ना दें तो नाराज़ हो जाते हैं, मजबूरी में उन्हें दावत दे सकते हैं? हाँ हाँ, तो उनके हक में रिश्वत होगी तो नहीं, नाराज हो जाते हैं जी। अच्छा, यानी उनके शर से बचने के लिए ये दावत देना ना पाया गया। इसमें बाबा मुतय्यन नहीं है ये, यानी शर से बचने के लिए दावत की सूरत मुतय्यन नहीं है, एक एहतमाल है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रिश्तेदार है कि जो बहुत ज़्यादा मसलन गीबतें भी करता है, चुगलियाँ भी करता है,
या किसी को बुरा भला भी कहता है, ना बुलाने के एतबार से या बहाने ढूंढता है, अगर इस किस्म का है और उसके शर से बचने के लिए बुलाते हैं तो फिर ये रिश्वत की सूरत बनेगी। लेकिन एक होता है कि जो मुदारात के ज़ुमरे में आता है, बाहिमी अखलाकियात के ज़ुमरे में आता है कि मोहब्बत भरा शिकवा कर देते हैं, भाई भाई से कर देता है कि हमारे घर नहीं आया या हमें आपने बुलाया नहीं। इस किस्म के जो बाहिमी इंबिसात की सूरतें होती हैं, बाहिमी मोहब्बत की सूरतें होती हैं, अपनाइयत वाली, वहाँ इस तरह का इजहार कर देने में कोई हर्ज नहीं होगा। शर से बचने के लिए हो तो कि दावत नहीं देंगे तो ये बुरा भला कहेंगे। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उसके इजहार करने में कोई जैसे कि हरज नहीं है कि उसने मोहब्बत के साथ इजहार किया है, लेकिन वो इजहार यही है ना, यार आपने बुलाया नहीं मुझे। अब उसने क्यों नहीं बुलाया, गालिबन सवाल की तरह अगर हम थोड़ा सा और गौर कर लें, उसे क्यों नहीं बुलाया, वो अब उसको भी नहीं कह सकता भाई मैं तुम्हें बुला कर क्या करता, तुम आते तो मतलब हमारे यहाँ मसाइल पैदा हो जाते, तुम जब भी आते हो लड़का चले जाते हो, तुम जब भी आते हो मसाइल पैदा करते हो। तो अब इस वजह से उसको बुलाया नहीं। अब उसने उसे शिकवा तो कर लिया, मीठा शिकवा कर लिया, बड़ा मीठा अंदाजा, यार आपने मेरे को बुलाया नहीं यार, बस भूल गए ना, मगर वजह उसकी पीछे ये थी। अब अगर वो उसको इस वजह से बुलाता है यार ये अभी रास्ते में मिलेगा दोबारा बोलेगा कि यार तुमने मुझे बुलाया नहीं, तो क्या अब बुलाना ये भी दुरुस्त होगा या ये उसी ज़िमन में आएगा, ज़ुमरे में आएगा जो आप फरमा रहे हैं? इसमें हाजी साहब यही जो मैंने दो किस्में बनाई है ना, जी, पहली किस्म तो ये है कि ज़रर वाला एहतमाल उसका ज़न्ने गालिब हो। ठीक है, एक शख्स ऐसा है वो ज़रर तकलीफ देता है, ज़बान से देता है। आम तौर पे जो रिश्तेदार होते हैं हाथ से तकलीफ देने की सूरतें तो कम होती हैं जी, लेकिन ज़बान से तकलीफ दी जाती है, बुरा भला भी कहा जाता है। इस तरह के दफ़े ज़रर की जो सूरत होगी, उस सूरत में जब अंदेशा गालिब होगा, ज़न्ने गालिब ये होगा कि ये मैं इसको ज़रर से, इसके ज़रर से बचने के लिए इसकी दावत कर रहा हूँ, तो वो रिश्वत की सूरत बन जाएगी। और अगर ये बाहिमी एक हल्का फुल्का सा शिकवा होता है, जैसे दोस्तों में भी हो जाता है, रिश्तेदारों के अंदर भी मुकाबला होता है, मिसाल के तौर पे एक भाई को बुला लिया, बहन ने दावत की, एक भाई को बुला लिया, दोनों के घर भी करीब है, यानी कोई एहतमाल भी ऐसा नहीं है कि एक का घर बहुत दूर है और एक का घर बहुत करीब है। करीब वाले को किसी मौके पर बुला लिया और दूर वाले को इस वजह से नहीं बुलाया कि वो काफ़ी दूर है या अगले शहर में रहता है, लेकिन दोनों भाई अगर करीब रहते हैं, एक को बुलाया दूसरे को नहीं बुलाया, तो बहन भाइयों के अंदर जो अपनाइयत और मोहब्बत होती है उसका भी एक तकाजा होता है फितरी के, बाज़ औक़ात बंदा उसका इजहार कर देता है हल्की फुल्की नाराज़गी का, तो ये ऐसी शर वाली सूरत नहीं है। माशाअल्लाह। इस सूरत में जो अगर एक दायरे में रहेगा, शरीयत के दायरे में रहते हुए हल्की फुल्की नाराज़गी का इजहार, शिकवे का इजहार करेगा, तो उस सूरत में गुनाह भी नहीं होगा। और अगर कोई गुनाह की सूरत अपनाएगा, खुदा न खास्ता गीबत करेगा, चुगली करेगा, बुरा भला कहेगा, तो फिर गुनाहों की सूरतें भी खुल सकती हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आमीन। SMS के ज़रिए सवालात आए हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अस्तगफार पढ़ना चाहिए या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, कौन सा ठीक है? अस्तगफार नहीं है, इस्तिगफार। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, विर्द करना है तो अस्तगफिरुल्लाह 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 ये करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कोई शख्स एक बार तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो अब वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता, क्या ऐसा ही है? तहज्जुद की नमाज जो है ये नवाफिल में से है, आला दर्जे का नफल है, और जिसने पढ़ी तो उसको चाहिए कि पाबंदी से पढ़े, ये अच्छा है। जो भी अमल हो अगरचे थोड़ा हो, पाबंदी से किया जाए तो वो ज्यादा पसंदीदा है। अलबत्ता किसी ने तहज्जुद छोड़ दी तो उसको गुनाहगार नहीं कहा जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये तो नहीं है ना कि जिसने एक बार तहज्जुद पढ़ी इससे फिर मुस्तकिल तहज्जुद पढ़नी जरूरी हो गई? जरूरी नहीं हो जाएगी, पढ़नी चाहिए, फजीलत है। एक बार भी ना पढ़ी उसको भी चाहिए कि शुरू कर दे, पढ़े, सवाब का काम है। रमजान शरीफ में इसका मौका ज्यादा मिलता है कि सहरी के लिए लोग उठते हैं तो साथ में 2 रकात तरावी भी पढ़ लें, तहज्जुद भी पढ़ लें, और खुश नसीब लोग पढ़ते भी होंगे जिनका ज़हन होता होगा। पढ़ना ही चाहिए, रमजान में तो सवाब वैसे ही बढ़ जाता है और मौका भी मिलता है। ईसाई बहनों को भी पढ़ना चाहिए।
عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تہجد میں کیا پڑھیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جسے چاہے تو جتنی قرآنی صورتیں یاد ہیں وہ ان میں پڑھ لیں، چاہے تو کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، تو ایک قرآن کے ختم کا ثواب ہوتا ہے 3 قل هو اللہ پڑھنے پر، سورہ فاتحہ کا اور باقی رکوع سجود دیگر اذکار کا ثواب اپنی جگہ پر، تو یوں مطلب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ فلاں فلاں صورت ہی پڑھنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ مفتی احمد یار خان نے اس کا لکھا ہے کہ بڑا لطف آتا ہے اس میں، اس طرح کا لکھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع تہجد میں پڑھے۔ بہرحال یہ کہ قید نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی، سورہ بقرہ کی آخری رکوع تہجد میں پڑھے، دونوں رکعتوں میں ایک ہی پڑھے یا اس کو آدھا آدھا کر کے پڑھ لے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ربنا لا تؤاخذنا شروع ہونے سے پہلے تک ختم کر دے حصہ، للہ ما فی السماوات سے شروع کر کے، اور بعد میں وہ ربنا لا تؤاخذنا اس سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لے۔ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ پوری رکوع، پورا یہ آخری رکوع ایک رکعت میں پڑھ لے، دوسری رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے، یا کوئی سی صورت پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ حضرت تفصیل مفتی صاحب نے نہیں لکھی، لیکن گنجائشیں جو ہیں اس کے حساب سے میں نے یہ مشورے عرض کیے۔ تہجد کا کہ کم از کم یا زیادہ رکعتوں کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں، یہ ہمارا پورا ایک تہجد کے حوالے سے بن جائے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 رکعتوں تک کا ثبوت ہے، 8 رکعتیں، اور اولیاء کرام سے 12 کا بھی ثبوت ہے، اور کم از کم اس کی رکعتیں 2 ہیں، تو جتنا پڑھے 12 بھی پڑھے، 12 سے زیادہ بھی پڑھے، ماشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کم از کم 2 ہی پڑھے۔ آدھی رات میں بعض اوقات کہتے ہیں اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے، یا بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو بھی اس کا ہوگا کہ عموماً یہ آدھی رات میں لوگوں کے نزدیک تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر دیں۔ کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے نا، تہجد کے وقت واقعہ ہوا تو فلاں جی یہ ہوا تھا تہجد کے وقت۔ تہجد کا تعلق گھڑی گھنٹے سے نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے 1 سیکنڈ کے لیے سو گیا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر ابھی مدنی مذاکرے میں آپ بیٹھے ہوئے، عشاء پڑھ چکے، ٹھیک ہے نا، اب بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، پھر ابھی اٹھ گئے، آپ کی تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ گھڑی کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے 7 بجے جماعت تھی اور 7:15 عشاء پڑھ کے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور 7:15 بجے آنکھ کھل گئی، تو یہ 7:15 بجے آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یا عام طور پہ یہ بھی سمجھتے کہ 12 بجے شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت، عوام جو ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ساری رات اگر جاگا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا، تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ سونا شرط ہے تہجد کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بابا جان، یہ جو آپ نے فرمایا تہجد، تو انشاءاللہ نصیب والے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد نہیں پڑھ پاتے کسی وجہ سے، اس کی پابندی بھی نہیں کر پاتے، تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تہجد کا ثواب حاصل کر سکے؟ مثال کے طور پہ جیسے یہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، اس کے حوالے سے کوئی روایت یاد آتی ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ پڑھ کر سوئے گا تو اگر رات کو آنکھ نہ کھلی تو اسے تہجد کا ثواب ملے گا؟ تو اس حوالے سے یہ صلاۃ اللیل جو ہے یہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہار شریعت پہلی جلد والیوم 1
पेज नंबर 658, मसला 19। वित्र के बाद 2 रकात नफल पढ़ना बेहतर है। इसकी पहली रकात में इज़ा ज़ुलज़िलत, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना बेहतर है। हदीस में है कि अगर रात में न उठा तो ये तहज्जुद के कायम मकाम हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें अगर रात में न उठा, नियत तो हो उठने की। फतह रज़विया शरीफ में है कि अगर किसी ने पूरी नियत है उसकी तहज्जुद में उठने की और अब आंख ना खुली तो उस बहरहाल उस नियत का उसको सवाब मिलेगा। अब ये हदीस पाक में ये सराहत है कि अगर रात में ना उठा तो ये तहज्जुद के कायम मकाम हो जाएंगे। बेआइन ही तहज्जुद हो जाएंगी ये भी नहीं है, कायम मकाम हो जाएंगे। हाँ, तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। तो अब यह कि कोई यूं 2 रकात पढ़ ले और फिर ये कि उठने की कोशिश ही ना करे तो फिर वो एक अलग सूरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जवाब दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी? सरदाराबाद भी है हमारे पास, और जवाब कौन देंगे? जी हाँ, मेरे सुनना। जवाब किन से लेना है? आज तो कोई आया ही नहीं है। बस कोई दौरे हदीस शरीफ के तालिब इल्म हो और एक माह के एतिकाफ में हो, अगर ऐसे हैं तो वो जवाब दे दें, इनको शायद पता हो। और जो पीछे शख्सियात है उनमें भी अगर ऐसे हो। सन्नाटा है, इतना निजी मुताला, प्राइवेट स्टडी नहीं करते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी? जी, बाबुल मदीना में है आपके पास? जी हाँ, जवाब देने वाले मौजूद हैं। जी, दावा है। देखो अब जवाब क्या देते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने 12 साल में सूरह बकरा सीखी। सूरह बकरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। गुफ़रान मरहबा है नाम इसका माहे, गुफ़रान मरहबा 12 साल में। दिल खुशी से यूं झूमता है गोया, मोमिन का दिल खुशी से। आपका जवाब दुरुस्त है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल में सूरह बकरा पढ़ी और तफसीर मुकम्मल होने पर शुक्राने में एक ऊंट ज़बह फरमाया। तो सिरातुल जिनान मुकम्मल करने पर आप मुर्गी ज़बह कर देना, और क्या। पढ़ो तो सही कहीं यार, मुर्गी ज़बह करके घर में खा लेना बस। तो सिरातुल जिनान पढ़े तो सही यार। सिर्फ सूरतुल बकरा 12 साल, यानी कितना वो तवज्जो से आपने इस पर तबसरा करने के लिए अल्फाज नहीं हमारे पास। तो ऊंट ज़बह किया, नील बयान किया। तो ये मतलब, तो हमें भी शुक्राने में कुछ ना कुछ, कोई भी किताब हम खत्म करें, दीनी किताब, तो शुक्राने में अगर हो सके तो कुछ ना कुछ राय खुदा में देना चाहिए। ये ऊंट का बुजुर्गों का, सुभान अल्लाह। देखो, अब कोई सिरातुल जिनान जिसने खत्म की हो, या फतह रज़विया शरीफ खत्म किया हो, बहार शरीयत पूरी पढ़ी हो, तो फैज़ान सुन्नत का खत्म किया हो, पूरी पढ़ ली हो, तो कुरान करीम तो बहुत सारे खत्म करते हैं, तो ये भी कुछ ज़बह करें मुर्गी वगैरह। अब ऊंट तो नहीं कर सकते ना यार, वहाँ जो इस्तिताअत, ऊंट बकरा जो भी हो, फिर खिलाए
सुभान अल्लाह। दोस्तों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, ये जरूरी नहीं कि गरीबों ही को खिलाएं, जिसको भी चाहे खिलाएं। मुझे नहीं खिलाना, बस आप कर लो, खुद ही खा लो, पर करो तो सही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ। मुझे अमीर अहले सुन्नत से ये पता करना था कि हम जो इलाज करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये कि अगर हमारा कोई 10,000 रुपए का किसी मरीज का कोई काम आया है तो उसमें 400 से 500 रुपए या 1,000 रुपए खर्चा होता है, तो फिर वो हमारे लिए कैसे है? अब झूठ ना हो, धोखा ना हो, तो ये मतलब यार इतना अरसा बंदे ने सीखा तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे गरीबों के साथ रियायत करनी चाहिए, उम्मत की खैर ख्वाही करनी चाहिए। कोई गरीब है, कोई सैयद ज़्यादा है, इस निस्बत से अगर उनसे कम ले लेंगे तो इंशाल्लाह सैयदों के नाना जान राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। और गरीबों से रियायत करनी चाहिए। पैसे बहुत लेते हैं सर, खोटे खोटे धक्के खिलाते हैं। डेंटिस्ट जो है इनका पता नहीं, माशाल्लाह ये तो कोई खौफे खुदा वाले मालूम होते हैं कि इन्होंने पूछा, वरना खामा का धक्का खिलाते। अब स्केलिंग करवानी है, दांतों में चूना जम गया है, एक एक दो दांत का ही करेंगे स्केलिंग, और फिर परसों आना, 8 दिन के बाद आना। वो जैसे वो बेचारा मरीज ये समझेगा कि इसका इलाज इसी तरह यूं होता है, हालांकि एक ही निश्चित में पूरे दांतों की स्केलिंग मुमकिन है, हो सकती है। कोई ऐसा इसमें कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। डेंटिस्ट इस बात को समझते होते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर धक्के खिलाकर पैसे खींचते रहना, इतना बेचारों का टाइम लेना, ये क्योंकि वो है कि अगर अब ये हर बार 1500 2500 वो ले रहा है, अगर एक साथ बोलेगा मैं 15,000 दूंगा पूरे दांतों की स्केलिंग की, तो वो उसकी चीख निकल जाएगी। तो इसलिए शायद वो धक्के भी खिलाते हैं नफ्सियाती तौर पर, वो भी से कि यार रोज डॉक्टर हमारा हमको टाइम देता है और इतनी मेहनत करता है। बहरहाल ये के गरीबों के साथ, बल्कि आका की उम्मत के साथ, मालदार भी हो तो ज़ाहिर है कि उसके साथ एहसान करना को मना तो नहीं है, सबके साथ एहसान करना चाहिए। हमारा दाम कम होगा तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे, नेक नामी भी होगी और अल्लाह की रज़ा मकसूद होगी तो सवाब भी मिलेगा। वरना ये कि जो ये इस तरह करते ना, तो ये इनकी टेक्निक होती है, टेक्निक की वजह से ये पैसे ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। जैसे कई डॉक्टर हैं सिर्फ मशवरा देते हैं, एक भी टेबलेट नहीं देते, और वो भी कई हजार रुपए ले लेते फीस उनकी। वकील कौन सा मतलब कुछ देता है, वो भी तो फीस ले ही रहा होता है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद इमरान अतारी नूरियाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि किसी रोजेदार बंदे से कोई बगैर रोजेदार पानी मांग ले, क्या पानी देना जायज है या नाजायज है? आपको मरीज है या बच्चा है कि बेचारा बच्चा तो रोजा उस पर फर्ज ही नहीं है, ऐसा मरीज है जो रोजा नहीं रख सकता, शरन उसको जायज है, या कोई ऐसी औरत है कि जिसको रोजा उस वक्त रखना हराम है, ऐसे दिन आते हैं उसके, उसने पानी मांगा तो देना सवाब है, देना चाहिए, पिलाना चाहिए। ऐसा ज़ईफ है जो रोजा नहीं रख सकता, ऐसा शेख फानी बूढ़ा, उसको देने में भी हर्ज नहीं। हाँ वो हट्टा कट्टा है और बिला उज्र उसने रोजा नहीं रखा तो अब उसको पानी ना दिया जाए। अब हट्टा कट्टा है लेकिन है मुसाफिर और शरण उस पर सफर के आलम में रोजा रखना फर्ज नहीं है, तब उसको भी पानी देने में हर्ज नहीं है, जबकि अपने को पता है कि यह है मुसाफिर। तो सूरतें ही इसके बनती है कि कब पानी दिया जाए कब ना दिया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि मेरी दुकान है वेल्डिंग की, लोहे की गेट जाली, इसमें माल तिजारत रखा है, लोहा अजनास है। उसमें ये पूछना है कि भाई लोहे की कीमत खरीद पे ज़कात दूंगा या लोहे की कीमत फरोख्त पे दूंगा? मार्केट वैल्यू, जी हाँ, जितना ये बिकेगा ना उस मार्केट वैल्यू पर जो बिक्री आई उस पर ज़कात में वो मतलब काउंट होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से एक सवाल है, फिरौनियों को मेंढक का अजाब दिया गया था, क्या इस वाक़ये से पहले दुनिया में मेंढक थे या नहीं थे? मेंढक का अजाब तो इस बनी इसराइल पर आया था, फिरौनियों पर। अच्छा वो फिर वो अच्छा दो थे ना, दो सिब्ती और किब्ती, किब्तियों पर आया था।
जो ईमान नहीं लाते थे, किबती, उनको डराने के लिए तो और भी आए थे, खून का अजाब और तो ये मेंढकों का। अब उससे पहले मेंढक थे या नहीं थे, सवाल ये किया। अब ये किसी ने सोच के निकाला होगा या सोशल मीडिया पे डाला होगा, जवाब दीजिए। अब सोचने पर तो क्या, कहाँ तक पाबंदी लगाएंगे। अब आप मदनी मुज़ाकरा हम भी खोल के बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, आप पूछो तो अब जिसके ज़हन में आएगा वो पूछ रहा है। तो पूछने में कोई गुनाह नहीं है। तो मेंढक था, अगर पूछना वरा पूछना ना हो तो अच्छा, बिला जरूरत सवालात की कसरत ये मना है, बेजा सवालात। ये एक अलग बराए हुसूल इल्म अगर पूछ रहा है तो ये तो सवाब का काम है। इसको हम मतलब मेरा ख्याल इस सवाल को हम अलग बनाते हैं, जो भी आपने इरशाद फरमाया। मेंढक वाले को क्या जवाब देंगे? लादरी लादरी। अब पहले ये थे नहीं थे दुनिया में, इनके वजूद इनका नहीं। कोई मखलूक अगर पहले थी या नहीं थी, अल्लाह ताला खालिक है, वो जब चाहे जिसको चाहे जब चाहे पैदा फरमा दे, भेज दे, वो मालिक है, ये कह सकते हैं। हाँ तो यही पहले, यही ना जवाब तो, पहले अल्लाह ने उसको पैदा किया था या सिर्फ उनको अजाब के लिए पैदा किया और इसके बाद इनकी नस्लें चल निकली। अब कुछ पता नहीं है तो अटकल से इस पर क्या मतलब आदमी बात करे। अब ये इरशाद फरमाए आपने जो सवाल पर जो अभी मदनी पुल अता फरमाए, अब कोई मदनी चैनल पर बैठा है या कहीं भी बैठा हुआ है, ये कहता है यार पूछो देखो इसको आता है कि नहीं आता। हाँ ये आजमाने के लिए सवाल करना, सीखने के लिए सवाल करना, या लोगों को फितने में डालने के लिए सवाल करना, तो सवाल करने की अलग अलग नौइयतें हो सकती हों। सोशल मीडिया का तो ये हिसाब किताब है ना कि सवाल कर दिया, आपके पास सवाल आया नहीं आया, हमने किया या नहीं किया, सोशल मीडिया पे मौजूद उसमें जो सैकड़ों लोग हैं उनमें से तो एक तादाद है जो सवाल पढ़ तो लेगी। तो अब ऐसी सूरत हाल में खौफ खुदा का तकाजा क्या है? ऐसा सवाल ना किया जाए कि जिसका ये अंदेशा है कि वो जवाब नहीं दे सकेगा और इससे लोगों को कंफ्यूजन पैदा होगा। अब ये कि वैसे मसला अर्ज कर रहा हूँ कि आलिम को बतौर इम्तिहान सवाल करना ये हराम है ना। बतौर इम्तिहान आलिम दीन से सवाल करना ये हराम है। आम आदमी का वो अलग बात है कि इनका बड़ा उस्ताद, तो अब वो बेजा नहीं कर रहा ना, वो तो वजह से कि इनको चेक कर रहा है कि अभी ये इसको कुछ आता है कि नहीं, वो अलग सूरत है। या इम्तिहान जो लेते जब तखस्सुस फिल फिक्र मसलन कर रहे तो आलिम होते हैं आमतौर पे, उनसे सवाल तो इनके पर्चे तो हल करवाने पड़ेंगे कि आगे इनको मस्जिद बनाना है आगे। तो ये अवाम जो सवाल करते हैं चेक करने के लिए, ये खतरनाक भी होता है। वो यहाँ गौस पाक का वाकया हमने बयान भी किया हुआ है, इब्न सक्का का, कि उस बदबख्त ने वक्त के गौस से इम्तिहानन सवाल किया था तो वो कुफ्र में मुब्तला हुआ, और अब्दुल्ला ने भी इम्तिहानन ही सवाल किया था, लेकिन वो इतनी वो उसमें सख्ती नहीं थी। उसका ये था कि देखता हूँ क्या जवाब देते हैं, और उसने कहा था वो मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते, वो तो बेड़ा गर्क हो गया उसका तो। और अब्दुल्ला फिर भी वो भी दीनदारी के उससे निकल कर इल्म दीन के फील्ड से वो दुनियादारी में गर्क हो गए। ये इनको भी सजा मिली। और मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, गौस पाक ने ना मैं इम्तिहान नहीं, मैं तो ज़ियारत करूँगा, सवाल नहीं करूँगा। तो ये जब इनकी बारी आई तो मेरे मुर्शिद को खड़े होकर इन्होंने गले से लगा लिया कि मैं देख रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि बगदाद मोहल्ला में बरसरे मिंबर आप ऐलान करेंगे कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलीयिल्लाह, कि हर वलीयुल्लाह की गर्दन पर मेरा ये कदम है। और ऐसा ही हुआ। तो इस तरह के सवालात जो है ना बेजरूरत, जो जिनका कोई सर पैर नहीं होता, इसके ताल्लुक से फतह रज़विया जिल्द 5 पेज नंबर 343 पर जो कुछ एक सवाल किया गया है, बिल्कुल बेसरो पाव और कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा है ना कि होना बहुत मुश्किल है। तो कयास करके एक सवाल किया, इस पर आला हज़रत ने उसको मदनी फूल दिए। तो के शरीयत जो है वो किसी भी सवाल का जवाब देने से आजिज नहीं है, बेबस नहीं है।
शरीयत के पास हर सवाल का जवाब मौजूद है, मगर ऐसा सवाल करना कि जो दरपेश नहीं है, पेश नहीं आया, और उसका होना ये भी बहुत मुश्किल है। इसका अंदेशा ऐसा सही अंदेशा नहीं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो जो नहीं हो सकता और कुछ पता ही नहीं, उसके बारे में ऐसे बेतुके सवालात करने पर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसा सवाल करना वबाल लाता है और कभी उससे मुश्किल में, न सवाल करने वाले को मुश्किल में मुब्तला कर देता है। फिर हदीस पाक आपने नकल की है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेजरूरत मसाइल पूछने से मना किया है। अगली कौमें हलाक भी हुई हैं बेजरूरत। सूरतुल बकरा में कितनी बेहतरीन तफसील है इसकी। सवाल कर 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 के इन्होंने वो खाल में आखिर सोना भरवाया, वरना गाय का कह दिया गया था, वो गाय इस गाय, काउ इस काउ, वो उस पर ये डन कर लेते ना, अच्छा गाय लब्बैक हम कर लेते हैं, कैसी हो, कैसा रंग हो, कितनी बड़ी हो, साइज क्या हो, उम्र क्या हो, पूछ पूछ के फिर वो दुनिया में एक ही गाय थी वैसी। तो वो फिर वो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए वो जो भी उसकी तरकीब फरमाई, और गाय में सोना भर के दो तो ये गाय मिलेगी। सूरह बकरा का वाकया बड़ा दिलचस्प है, तो इसलिए वो बिला जरूरत औलाद करने से बाज़ औक़ात आजमाइशें बढ़ जाती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ऐ जलवाए जाना, तू माह नबूवत है, जलवाए जाना, चौसा किए कौसर के चेहरे से सीना का बूटे, हर दिल बने बखाना, हर आँख हो बहाना, हर दिल बने बखाना, हर आँख हो बहाना, तू आगे नबूवत है, जलवाए जाना, सरशार मुझे कर दे, एक जामे लबा लब से, सरशार मुझे कर दे, एक जामे लबा लब से, ता हश्र रहे साकी, आबाद ये मैदाना, ता हश्र रहे साकी,
खाना है ज़हर मासी का, तैबा ये शिफा खाना है ज़हर मासी का, तैबा ये शिफा खाना, तू आगे नबूवत है, ऐ जलवाए जाना, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के किसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर 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 के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संग संगे दर जाना, छूटे न इलाही अब संग संगे दर जाना, तू आगे नबूवत है, जलवाए जाना, वो कहते न कहते कुछ, वो करते न करते कुछ, वो कहते न कहते कुछ, वो करते न करते कुछ, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, मुझसे मेरा अफसाना, मुझसे मेरा अफसाना, मुझसे मेरा अफसाना, है काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, हर आरज़ू पर सब हसरत पूरी हो, हर आरज़ू पर सब हसरत पूरी हो, कान ज़रा दर्द कर सुन ले मेरा अफसाना, वो कान ज़रा धर कर सुन ले मेरा अफसाना, वो कान ज़रा धर कर सुन ले मेरा अफसाना, सरकार की जलवों से रोशन है दिल नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना, तू है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है, जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में, सरकार के जलवों से रोशन
है दिल नूरी ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना ता हश्र रहे रोशन रोशन नूरी का ये काशाना तू शम्स मेरी सादत है आलम तेरा परवाना तू माहे नबूवत है इसमें जो ये मक्ता पढ़ा गया तो मुझे ये याद पड़ता है कि ये दुआइया मक्ता है। वो सरकार के जलवों से रोशन हो दिले नूरी, इन्होंने दुआ फरमाई सरकार मुफ्ती आज़म ने। और फिर ये मजीद ये दुआ कि ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना, यानी ये दिल रोशन हो जाए और फिर ये हमेशा रोशन रहे। अब इसमें ये खबरिया हमारे साहब कर देते कि वो क्या मतलब अपने तौर पे, मगर सुनने वाला ये समझेगा ना कि शायर ने ये अपनी तरफ से ये दावा किया। अच्छा, अब हमारा तो उसने जन है कि इनके सदके हमारा दिल रोशन होगा, तो वलीजुल्लाह थे सरकार मुफ्ती आज़म। तो ऐसे मौके पर ये है कि असल जो इन्होंने लिखा है ना ये पढ़े। अब नात खानों को इतना बोलना तो आता नहीं बेचारों को, मुबल्लिग तो होते नहीं है, वरना पहले तो जो असल पढ़े कि सरकार के जलवों से रोशन हो दिले नूरी। सरकार मुफ्ती आज़म ने ये दुआ मांगी और हमारा उसने जन है कि इनकी दुआ कबूल है, और हम उस उसने जन की बिना पर ये कह रहे हैं कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। यूं करके पढ़े ना, अब इतना आता नहीं होता इनको बेचारों को। इसमें ये रहनुमाई फरमाएं। ये एक तो पक्का मुबल्लिग बैठा हुआ है, इतनी तवज्जो नहीं होती। मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ, इसमें ये रहनुमाई फरमाए कि बाज़ औक़ात हम नात खान किताब से देख कर पढ़ रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर किताब में ही वो चीज़ लिखी हुई है, तो अब ऐसा कैसे हम अपनी वो लाएं कि हम ये समझ सकें कि जो किताब में लिखा हुआ है ये किताबत की गलती है या दुरुस्त क्या है, इसके बारे में कुछ मदनी मुलता फरमाएं। किताबों में यही लिखा हुआ है रोशन है दिले नूरी। अभी फिलहाल तो ये किताब में लिखा हुआ है, दूसरे नुस्खे में भी यही है, दूसरे नुस्खे में भी, मेरे पास दूसरा नुस्खा है इसके अलावा। अच्छा, हो तो किताबत जो आपने फरमाया वो लिखने में भी तो मतलब हो सकता है ना। अरे कि ये हो ही पढ़ा जाता था किसी दौर में, अब ये है हो गया है, तो हो भी पढ़े है भी पढ़े वजात के बाद तो मदीना बाइक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, 12 लिए के यूं इसकी हिकायात है, अब खुदा बेहतर जाने। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह अगर फरमाते हैं तो मदीना मदीना, जैसे आलाज़त ने फरमाया कि नकी रैन करते हैं ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पर ही इज्जत मिली है, तो ये तो खबर दे रहे आने वाली खबर दे रहे ना। ये सब ये है उसने सन ही पर महमूल किया जाएगा इसको कि अल्लाह की रहमत पर इतना मजबूत भरोसा है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। आजकल घरों की छतों पर बास कंपनियां टावर लगवाती हैं, सिग्नल टावर, बूस्टर वगैरह के लिए भी। सवाल ये है कि क्या अपने घर की छत पर टावर लगवाकर, इस तरह की चीजें लगवा कर उनसे किराया लिया जा सकता है? ले सकते। ठीक। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा उस्मानी अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि बाज़ लोग मस्जिदों में मिसवाकियाँ रख जाते हैं, तो क्या हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब इनायत फरमा दीजिए। पहचान हो जाती है कि मिसवाक की गट्ठी दरवाजे के पास रख देते हैं, तो ये करीना बिल्कुल वाज़ेह है कि जो चाहे वो ले जाए। एक एक दो दो मिसवाक लोग ले जा रहे होते हैं, पूरा गट्ठा उठाकर ले जाना ये करीना नहीं है, ना इसका उर्फ है। वो लोग लें और इसको इस्तेमाल करें। एक तो ये,
اور بعض اوقات یہ استعمال شدہ مسواک لوگ رکھتے ہیں وہاں کہ دوبارہ آئیں گے اور یہاں کریں گے، ان کو ایسا رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کی رکھی ہوئی ہے تو اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوگی کسی کی بظاہر قرینہ یہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے نعت خان اسلامی بھائی تشویش میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کوئی فائنل ہمیں کر دیں، کیا پڑھیں کیسے پڑھیں، کیونکہ ایک شعر اور بھی تھا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انہوں نے پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ تو اب یہ کہ جو آپ نے جس طرح توجہ دلائی ہے کہ ہو یا ہے، تو اب فائنل یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اشفاق بھائی کیا آپ جیسے امیر علیہ سنت فرمائے ہم پھر ویسا کریں گے نا انشاءاللہ، تو آپ حکم فرما دیں کہ کیا یہ فائنل ہوا۔ شعر تو جو ہے نا پیا ہے آپ نے جام محبت، یہ تو صحیح ہے کہ سرکار مفتی اعظم نے جو لکھا وہ تو پڑھ دینے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ہو لکھا ہے کہ ہم نے اب تک ہو سمجھا ہے، تو اب مفتی حسان صاحب نے کچھ اور ارشاد فرمایا کیا سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ خود فرمایا ہے کہ ہے، تو ٹھیک ہے، لبیک، سر تسلیم خم ہے کہ ہم تو سرکار مفتی اعظم ہند کے پیچھے اپنی آنکھیں تو بند ہیں، اعلی حضرت کے شہزادے ہیں اور بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، تو ان کے اشعار جو ہیں الحمدللہ ہم مدینہ تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو سمجھا تھا وہ عرض کیا میں نے کہ جب انہوں نے اگر لکھا ہے کہ ہو تو یہ دعائیہ ہے، تو ہم نے وہ دعا قبول ہو چکی، یہ ہم نے طے کر لیا، تو اس لیے وہ ہو پھر حسن زن کر، یہ حسن زن کے ہی زمرے میں آئے گا۔ قطعی خبر تو نبی دے سکتا ہے، اور نبی کے بتائے سے جو بھی ہے امتی ولی وہ دے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ایسا ممکن کہ ہند والے نسخے میں دیکھ لیا جائے جو کہ حاجی مشتاق نے جو محافل نعت میں شروع کی تھے نا، یہ نعت توشم میں رسالت عالم تیرا پروانہ 97 میں شروع کی تھی یہ نعت پڑھنا، اور یہ اس وقت انہوں نے شروع کی تھی اور یہ اب جا کے یہ جو نا مشہور ہوئی، تو اس وقت حاجی مشتاق یہی پڑھتے تھے آباد اسے فرما، آباد اسے فرما، یہ اس کے علاوہ الگ شعر ہے، ویراں ہے دل نوری۔ ہاں یہ لگتا ہے کہ یہ اسی کلام کا الگ شعر ہے۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے سامان بخشش کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، پہلے والا جو چھپتا تھا پہلے یہی والا مقطع تھا کہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تو جب یہ پڑھا گیا محفل میں تو پھر آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ فرمایا کہ روشن ہو چکا ہے، اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے دعا کریں کہ ہمیشہ روشن رہے یہ۔ ہاں تو یہ مطلب اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، تو ان کو مطلب الہام ہوا ہوگا، جو بھی ان کو معلومات ہو گئی ہوں گی، اور انہوں نے اسی حسن زن کی بنا پر ارشاد فرمایا ہوگا کہ اب میرا دل روشن ہو چکا ہے، تو اس لیے اب اس پر میرا خیال ہے وہ کوئی حرج نہیں ہم کو مان لینے میں۔ اسی طرح کا ایک اور شعر مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ملتا ہے، مقطعی ہے، مرقد نوری پہ روشن ہے یہ لال شب چراغ، یا کوئی روشن ہے ذرہ آپ کی پیزار کا، اس میں بھی بڑی پیاری بات کی ہے، خبر بھی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، ان کے صدقے ہم سب کو بخشے، بے حساب بخشے۔ وہ ایک شعر بہت اچھا ہے جو ہم 12 ربیع الاول میں پڑھتے رہتے ہیں، اٹھ لانا زبان کریم سے نوری، اسی کلام کا وہ کوئی شعر ہے کہ عرب کے چاند لہد کے نصیب تیرا چمک طرز میں سنا ہے آپ تو، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سیرہانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں امیر سنت؟ نہیں وہ مفتی صاحب ہے، ثبوت تو دیں گے نا،
मुफ्ती साहब है। वहाँ दलाइल और बराइन से साबित कर रहे हैं कि हो, चलो हो है, अच्छा हाँ है साबित कर रही है, तो मान लिया हमने, मैं हार गया, आप जीत गए। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने एतराज तो किया ही नहीं है ना, मैंने तो अपनी वो मालूमात जो मेरी वो दिमाग में बैठी हुई थी वो अर्ज की है। भाई गलती हुई है मेरी, ये मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह नहीं फरमाया था, उन्होंने कुछ और फरमाया था यहाँ पर। असल में ये जानशीन है मुफ्ती आज़म हिंद ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला का फरमान है इस तरह। आपका मैंने पूरा पढ़ नहीं सका यार, बारीक बारीक। असल में ये लिखा है कि मौलवी अब्दुल हमीद साहब रज़वी अफरीकी ये नात पाक हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पढ़ रहे थे, तो फिर आपने उसमें कुछ लफ्ज़ तब्दील करवाया था नूरी की जगह। तो जानशीन मुफ्ती हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह यानी मुफ्ती रज़ा खान साहब वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने बरदस्ता ये अर्ज़ किया कि इसको इस तरह पढ़ लिया जाए कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। तो हज़रत किबला ने यानी मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पसंद फरमाया। हाँ बस तो वो तायद हो ही गई जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। क्या तायद हुई, कुछ हमें भी समझा दें या आप पे। अब ये पढ़ने में हरज नहीं है। मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ हो गई है कि जो मुफ्ती साहब ने जैसे अभी कलाम किया कि वहाँ उस वक्त क्या पढ़ा गया था जिस पर अजहरी मियां अख्तर रज़ा खान साहब रहिमहुल्लाह ने जो कहा कि यूं नहीं यूं पढ़ो और उसको पसंद किया, तो वो सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया। जब ये है ना कि वो नहीं, पहले तो वो पढ़ा अफरीकी साहब जो थे खलीफा मुफ्ती आजम ने, आप पूरा जी यानी इसी तरह पढ़ा था, तो उस पर आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर का दिल रोशन है। तो फिर उसके बाद कुछ बात हुई, तो आगे फिर अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इसको यूं पढ़ लिया जाए, तो हज़रत ने फिर इसको पसंद फरमाया कि हाँ यूं पढ़ लिया जाए, यानी यूं पढ़ लिया जाए। मुफ्ती आजम हिंद ने ये इजाजत दे दी है कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। अच्छा, ये एक मुझे कल आई थी, एक किसी ने भेजा है कि मौलाना अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह शिफा शरीफ में फरमाते हैं कि रूहुन नबी हादिरतुन फी बुयूती अहलिल इस्लाम, यानी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के घर में जलवा फरमा है। ये फतावा रज़विया के हवाले से ये बात भेजी गई है। तो इस हवाले से साहिल मोहतरम ने कहा है कि कुछ इसके बारे में अमीर सुन्नत से मदनी फूल लिए जाएं। और जब भी किसी खाली घर में दाखिल हो, तो खाली है तो कोई नहीं है, तो अब बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज करे कि अहले इस्लाम यानी मुसलमानों के घर में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह तशरीफ फरमा होती है। यूं सरकार की खिदमत में अर्ज करे, मसलन ये कह दें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, खाली घर में दाखिल हो तो ये भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, या बहरहाल सलाम अर्ज करे है, शायद यही अल्फाज है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी कह सकते हैं। यानी कोई घर में हो तो उस घर में जो मुसलमान है उसको सलाम करे, अगर घर खाली है तो फिर ये बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज करे कि रूह मुबारक मोमिनों के घर में, अहले इस्लाम के घर में, मुसलमानों के घर में तशरीफ फरमा होती है। बड़ा ईमान अफरोज अकीदा था हनफियों के इस इमाम का, जो सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, आजकल के नहीं है। तो ये मुल्ला अली कारी अलैह रहमतुल्लाह अल बारी न, जिनको या रसूलुल्लाह के वसवसे आते हैं या वसवसे डालते हैं ना जो लोग, वो भी मानने का दावा करते कि ये अच्छे आलिम थे और अच्छे बुजुर्ग थे। तो ये लिख कर चले गए, हमको नुस्खा दे गए कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, पढ़ते रहो, कोई मसला नहीं है, पढ़े जाओ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। उस्ताद साहब, ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, दोनों का तर्जुमा एक ही है ना? दोनों में ये है ना कि ए नबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह में सलाम के साथ सलात दुरूद भी है,
اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ. ہاں آگے کا جو جملہ ہے کہ ایھا النبی ایھا النبی و یا رسول اللہ, اور اسی طرح یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول. یا رسول اللہ کا ترجمہ ہے اے اللہ کے رسول. اور السلام علیکہ یا رسول اللہ, آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول. اور السلام علیکہ یا ایھا النبی, السلام علیکم ایھا النبی, آپ پر سلام ہو اے جلیل الشان نبی, عظمت والے نبی. یعنی وہ سلام عرض کرنے کا ہے, اس لیے وہاں درود شریف پڑھ لیا تو بے حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین, ماہ رمضان میں امیر سنت نے چند دنوں پہلے بھی ہمیں صحت مند رہنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دے. عصر تا مغرب ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی اپنی مثال آپ ہے. بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم شروع سے ہی عصر تا مغرب جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں. اور اس میں بالکل مختلف نوعیت کے بھی سوالات آتے رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ سوالات کے صحت سے متعلق بھی سوالات ہوئے تھے, اور آپ نے کھانے پینے کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے خود دیکھا ہوگا امیر سنت آج کل جس طرح کی سحری افطاری آن ایئر ہو رہی ہے, تو ہم اس متعلق تو امیر سنت کل ہی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ یہ کیا اس معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, آخر راز کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں. اور لیکن آج ہمارے ساتھ دو ڈاکٹر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. میں امیر سنت سے چاہوں گا کہ ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر کامران اتاری ہیں, ڈاکٹر سلمان اتاری. اچھا یہ ہے یہ کہ یہ اس وقت ہمارے ساتھ جو فیضان مدینہ میں جو مستشفیٰ ہے, چھوٹا سا ہاسپٹل ہے کلینک ٹائپ کا, اس میں بھی یہ مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید ہو سکتا ہے کہ تجربات ہوں کہ آج کل کیا کیا امراض اس وقت ماہ رمضان کے حوالے سے روزہ داروں کو یا دیگر کو ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے کچھ تجربات بتائیں, پھر امیر سنت بھی اپنے کچھ تجربات بیان کریں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے سننے والوں کو امید ہے کہ فوائد بھی ہوں گے, اور ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے صحت اختیار کرنے کا ہو سکتا ہے ذہن میں. تو پھر میں ہی آگے بڑھتا ہوں. ڈاکٹر کامران, آپ یہاں ہمارے فیضان مدینہ میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر مریض کس طرح کے آ رہے ہیں؟ یہاں فیضان مدینہ میں جو اس وقت ہم پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے گلا خراب وغیرہ ہے, اور پیٹ کی جو امراض ہیں اس کے مریض زیادہ تر آ رہے ہیں, کیونکہ کھانے پینے کے معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات کانسٹیپیشن, قبض کے شکایت کے مریض کافی زیادہ ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. اس قسم کی پرابلمس کے مریض بیسیکلی زیادہ ہمارے پاس. کب زیادہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کب یہ پرابلم گھروں میں بھی اس وقت ہوگا, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہوں گی؟ سارا سال جو چیزیں نہیں کھاتے وہ اس سال کھا رہے ہوتے ہیں, یعنی تلی ہوئی چیزیں. تلی ہوئی چیزوں میں یہ ہے کہ یہ ڈیپ فرائی جو ہے نا, تو یہ تیل جب اس کو کڑکڑاتے ہیں نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں, اور یہ مضر صحت ہے, یعنی کینسر تک یہ لے جاتی ہیں, آخر اس کا لاسٹ اسٹیج. تو یہ تیل جو ہے نا, یہ مطلب اب جو اس میں آ گیا سموسے میں, مثلا کباب میں, تو پکوڑے میں, تو جو بھی چیز تلی ہوئی ہے, تو یہ تیل جب پیٹ میں جاتا ہے اس غذا کے ساتھ, تو جو اور غذا ہے, چاول کھایا آپ نے, روٹی کھائی, بوٹی کھائی, یہ تیل اس کی کوٹنگ کر دیتا ہے ان غذاؤں کی. تو جب اس کو کوٹنگ ہو جاتی ہے تو اب یہ کہ وہ ہاضم لعاب جو اندر گیا, یعنی ہاضمے کا جو بھی سسٹم ہے, ڈائجسٹیو سسٹم, یہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, اور ہضم کرنے میں اس کو بہت زحمت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے پیٹ میں درد, تو قبض, کہ وہ پھر اس کو پورشن بھی بدلتے ہیں اپنے اپنے حساب سے, تو یوں مطلب یہ ٹریفک جام کر دیتے ہیں. لیکن اب آپ نے جو وجوہات بیان فرمائی ہیں, ان وجوہات جو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے, ان میں سے چند وجوہات آپ نے بیان فرمائی ہیں. لیکن اب میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں تو ہم نے ان چیزوں کو روکا ہوا ہے, اور ان کے پاس اس طرح کے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں. تو اس طرح کے پیشنٹ اگر گھر میں ہیں تو چلو ہو گئے کہ گھر میں یہ اتنا کرتے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو ہم نے نارملی کھانے پینے کے حوالے سے جو احتیاطیں کی ہوئی ہیں, تو پھر اس طرح کے پیشنٹ ہوگا. ڈاکٹر سلمان, آپ کیا کہتے ہیں؟
ایسا جیسا بھی امیر السنت نے ترغیب دلائی ہے فری ریڈیکل کی. فری ریڈیکل سمجھ لیں کہ اکثر عوام کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ سمجھ لیں سائنٹیفکلی اس وقت جو مین ریسرچ کا ٹاپک ہے. فری ریڈیکل انڈیوس بہت سارے آرگن وغیرہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ تلی ہوئی غذائیں وغیرہ سے ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا, اب ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ فیضان مدینہ کے اندر ہمیں غذا جو ہوتی ہے, جو افطار کا طریقہ ہے, بالکل صحیح طریقہ ہے, اور کھانا بھی یہاں پہ وہ صحیح مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے. اکثر امیر السنت یہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ نوالا چھوٹا کھانا ہے اور چبا چبا کے کھانا ہے. دس از دا مین ریزن. اس کی اگر اس کی فزیولوجی آپ یوں سمجھیں, جیسے ہم یوں سمجھ, امیر السنت ہمیشہ ترغیب دیتے ہیں کہ دانتوں کا کام ہم آنتوں سے لیتے ہیں. ابھی جیسے جو دانت کی کو ہم یوں سمجھیں, تھوک اور لعاب اگر یہ مکس نہیں ہو کھانے کے ساتھ تو یہ کھانے کی نالی سے اترے گا. اگر یہ پراپر مکس نہیں ہوگا تو سالڈ ہو جائے گا, مطلب سالڈ ہوگا, سخت ہوگا, تو ہضم ہونے میں یہ مشکل ہوگا. دوسری چیز اس پہ ترغیب یہ دینی تھی, امیر سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ نوالا چھوٹا ہونا چاہیے. میدا پیٹ اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے جو کہ سٹینڈرڈ ہے 1 سے 2 لیٹر. 1 سے 2 لیٹر 2 لیٹر اتنی ہے نارمل. بندہ سالڈ فارم ہو یا لیکوڈ فارم ہو, یعنی پانی ہو یا غذا ہو, 1 سے 2 لیٹر آپ کے معدے میں جا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ایسا ہے کہ یہ ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہے, یعنی 4 لیٹر بھی جا سکتا ہے. اب جو مریض جو کمپلین یہ کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہی لیٹے, اب چونکہ زیادہ مقدار میں کھانا کھا لیا ہوتا ہے, اور معدے کی جو پوزیشن ہے جو سیک لائک اسٹرکچر کہلاتا ہے, وہ یعنی تھیلی نما ہوتا ہے, جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں تو میدا چونکہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے, سٹنگ پوزیشن, لیٹے کی پوزیشن میں یہ کھانا واپس ریورس کھانے کی نالی پہ آتا ہے. جو پہلی کمپلین ملتی ہے کہ سینے میں جلن مچ رہی ہے. اور نوالے کا سائز چھوٹا ہونا ضروری ہے, چبا کے زیادہ کھانا چاہیے کیونکہ تھوک کی اپنی اہمیت ہے. تھوک اگر کھانے کے ساتھ مکسڈ ہوگا تو ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے, جو عمل ہے ہاضمے اب جیسے آپ نے ہاضم لعاب کل فرمایا تھا, تو میرا یہ اسی طرف غالباً توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر چھوٹا نوالا نہیں ہوگا اور صحیح چبائیں گے نہیں تو یہ نقصان سامنے آ سکتا ہے. زبان کے نیچے تھیلی ہوتی ہے جی, یا تھیلیاں ہوتی ہیں جس سے ایک تھوک نکلتا ہے. یعنی کہ ابھی اپنے کوئی یوں کھٹی چیز دکھائیں گے نا, املی دکھا کے یوں کریں گے نا تو وہ منہ میں پانی آ جائے گا, تو یہ نیچے سے نکلتا ہے. اب نام نکل آیا ہوگا بلکہ تو نام لے کر اور زبان کے نیچے سے یہ لعاب نکلتا ہے. یہ ہم چبائیں گے نا کھانا, تو ایک تو کھانا کے وہ تھوڑا چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے, پچک جائے گا, دب جائے گا, کٹ جائے گا, تو ایک تو باریک ہو جائے گا یہ, تو یوں مطلب, اور پھر یہ لعاب مل جائے گا تو ہاضمے میں مدد ملے گی. اگر کسی نے قیمے کی مشین چلتے دیکھی ہو تو بوٹی کو کوٹ کر چھوٹی بوٹیاں کر کے مشین میں وہ نکالتے ہیں. اگر بڑی بوٹی ڈال دی, ساتھ میں چھچڑے ڈال دیے, تو پھر یہ آگے اٹک جائے گا اور صحیح قیمہ نہیں نکلے گا, مشین جام ہو جائے گی. تو اب یہ ایک تو چباتے نہیں ہیں صحیح, بڑے بڑے پیس اندر جا رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہے کہ ہاضم لعاب, ہضمے دار جو تھوک ہے وہ اس میں مکس نہیں ہو رہا, تو یوں یہ سوکھا سوکھا ایک طرح سے ان مانو کر وہ جا رہا ہے اندر. تو یہ اس مشین کے نظام کو یہ خراب کر رہا ہے. مشینوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تیل لگانا پڑتا ہے بار بار, جب بھی ضرورت پڑتی ہے. تیل نہ لگا تو چینچی بولتا ہے مشین, تو یہ ہمارے پیٹ میں پھر وہ چینچی ہوتا ہے, وہ گیس بھرتا ہے اور پھر وہ قبض ہوتا ہے, اور یہ سب مطلب نہ. تو یہ حساب کتاب. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ جیسا پاپا نے بہت سوکھا سوکھا گیا, جب اس طرح کے مریض بھی آتے ہیں بوٹی حلق میں اٹک جاتی ہے, بوٹی حلق میں اٹک جاتی ہے. اگر اس کا پروسیجر اگر کوئی سن لینا جن کی اٹک جاتی ہے, مثلاً تو ٹریکیوسٹومی بولتے ہیں اس کو, مطلب فوری طور پہ آپ کو چھید کرنا پڑتا ہے. وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں بوٹی اٹکی ہے, کیسے اٹکتی ہے بوٹی, کیوں آپ نے بوٹی آپ نے چبائی نہیں, آپ نے فوراً آپ نے لے لی, وہ آپ کا ڈرائی فارم میں ہوا, سوکھی فارم میں ہوا, وہ جا کے آپ کے گلے میں اٹک گئی. اب جو کھانے کی نالی ہے اسی کے پیچھے سانس کی نالی بھی چل رہی ہوتی ہے, سامنے چل رہی ہوتی ہے, برابر میں چل رہی ہوتی ہے. اب چونکہ بوٹی اٹکی ہوئی ہے کھانے کی نالی میں, تو وہ سانس کی نالی کو بھی بند کر رہی ہوتی ہے. ایمرجنسی ٹریٹمنٹ پروٹوکول یہ بولتا ہے کہ فوراً مریض کی ٹریکیوسٹومی یعنی گلے کا چھید کر کے تاکہ ایئر وے آپ کا کلیئر ہو, سانس آنا شروع ہو جائے. بوٹی تو پھر بعد میں نکلتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ ہمیں چبا کر کھانا چاہیے. لیکن اب یہ سب میرے سے فرمایا کہ یہ اندر میں سوکھا سوکھا گیا, تو لوگ عموماً کولڈ ڈرنک پی کر, بوتل پی کر, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر اس کو گیلا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں نا بابا.
एकदम गर्मा गर्म हो और उसमें ठंडा पानी लगे शूं करके आवाज देगा। तो ये जो खाते हैं ना, इसमें ठंडे में ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक जाना, ये भी हाजमे को तबाह करता है। और जो हाजिम अल्लाह ने निज़ाम रतूबतों का रखा ना, वो इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक वही फिर पेट की खराबियों का सिलसिला होगा। डॉक्टर साहब, एक तो वह मैदे का या पेट का प्रॉब्लम, ये डॉक्टर साहिबान, मैं वैसे आप लोगों से सीख कर बोल रहा हूँ। मैंने ज़ाहिर आपको पता ही है, और मैंने MBBS तो किया नहीं है, ना कोई वो तिब किया है। बहुत सुना कर पढ़ गए और ये से 2-4 बातें आप लोगों से सुन ली, उससे सुन ली। ये बोल रहा हूँ, जहाँ भी मेरी भूल हो तो वहाँ मतलब बिला झिझक मेरी इस्लाह कर देना। ये नहीं कि आप कैसे बोले, फिर ये नहीं कि उम्मत तक गलत बात चली जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इरशाद फरमाएं कि जैसे एक तो हो गया हाजमे का प्रॉब्लम फिर इस वक्त इन दिनों में, दूसरा आजकल क्योंकि हम ये सिलसिला कर रहे हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें, हमारी रोज़े, हमारी तरावियाँ, हमारी दीगर इबादत, हमारे और रोज़मर्रा के मामूलात बेहतर तरीके से चल सके। ज़्यादा बीमार हो जाएगा आदमी तो उसके लिए काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं इस वक्त इन 4-5 दिनों के अंदर? इसमें जो बेसिक या बाहर से आपको कोई सी इन्फॉर्मेशन है? जो नंबर ऑफ मरीज पहले तो पूछें कि कितने आ रहे हैं, कितने आना चले, मैं 300 प्लस जा चुके हैं रोजाना। ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं ना आप, तो ये भी बाहर से आए और बाहर नहीं, ये यहीं के पेशेंट हैं, लेकिन अगर बाहर भी अगर हम इसको करते हैं तो वो एक तरह से बढ़ जाती है प्रैक्टिस। और ज़्यादातर प्रैक्टिस के अंदर यही आते हैं कि GIT यानी कि जो पेट की बीमारियां होती हैं उसके साथ लेकर आ रही होती हैं, या गले की बीमारी होती है, पेट की बीमारी होती है। जैसे हाजमे की तरफ तवज्जो दिलाई कि हाजमे में होता है, इसमें एक बड़ा फैक्टर जैसे शुरू में सलमान भाई ने कहा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो लुआब के साथ मिलकर आपका हाजमे में मदद दे रहे होते हैं। इसी तरह जब से बापा ने इस पर तवज्जो दिलाई है कि ठंडा पानी आप पीते हैं, आप ठंडा पानी का अगर आप देखते हैं तो ठंडा पानी अगर आप लेते हैं तो एक नॉर्मली भी अगर हम ठंडे पानी में अगर जाते हैं तो हमारी बॉडी श्रिंक करती है, ऐसे करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो एक मेंटेन किया हुआ होता है। तो अगर आपने खाने के साथ ठंडे पानी को अंदर ले लेते हैं तो आप वो सोचेंगे वो जो आपका डाइजेशन का अमल होता है, निज़ाम हज़म का अमल जो होता है वो डेफिनेटली स्लो हो जाता है। उसकी जो शरियानें होती हैं बारीक बारीक जो उसकी डाइजेशन से निकल रही होती है, जिसको डाइजेशन में मदद देती है, हाजमा। डॉक्टर साहब इसको ऐड कर देता हूँ, जैसा हिसाब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो बॉडी बनी और डिज़ाइन इसी सूरत में हुई है, जो निज़ाम हज़म के जो एंजाइम्स वगैरह जो काम करते हैं वो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर कम होएगा, जैसे ठंडी चीज़ें पी ली, तो निज़ाम हज़म को हज़म करने के लिए जो लुआब हैं, जो एंजाइम है, वो काम नहीं कर रहे होते हैं। वो लीड करते हैं बदहज़मी की तरफ, और बदहज़मी पे लीड करती है तेज़ाबियत और फिर कब्ज़ की तरफ। तो खाने के बाद ये ठंडा पानी पीना, तो जो हमारा नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम काम कर रहा है वो उस इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहा होता है, वो काम करने का प्रोसेस रुक जाता है। मिसाल के तौर पे बोटी या कोई भी आइटम हमने खाया वो सेमी सॉलिड था और वो एंजाइम पूरा काम नहीं कर सका, तो वो कच्चा ही समझ ले आंतों के अंदर चले जाता है। तो अब ये लीड करता है छोटी आंत का अल्सर, छोटी आंत का अल्सर। तो ये समझ ले यहाँ से शुरू है। क्या फरमाते हैं अम्बिल सुन्नत? ज़ाहिर डॉक्टर साहिबान है और किताबों में इनकी ज़्यादा मालूमात होती है इसकी। तो ये अल्सर भी हो सकता है, खासकर वो फिर मिर्च मसाले अलग इसमें, आजकल हमारे मिर्च मसाले भी तेज़ खाते हैं, तो ये भी अल्सर ला सकते हैं। जख्म हो जाता है हाथ में, छाला पड़ जाता है, जो बहुत तकलीफ दे होता है। अल्सर आगे जाके भी कोई खराबी पैदा करता है? अल्सर अगर सड़ता रहा तो कैंसर भी ला सकता है। कैसे पहले हमसे पता चले कि अल्सर हो गया है, हम इसका चेकअप करवा सकते हैं? अलामत से डॉक्टर बताएगा, वो भी डॉक्टर भी अपने तौर पे नहीं बताएगा, इसके टेस्ट करवाएगा। टेस्ट के जरिए फिर वो इसको रिजल्ट देगा कि ये आपको अल्सर हो गया। एंडोस्कोपी अलामत से बता देगा कि मुझे शक है, तुमको अल्सर मालूम होता है, लेकिन टेस्ट से उसका पता चलेगा। अब ऐसे मौके पर डॉक्टर, देखो डॉक्टर ने एक डॉक्टर अपना पक्का रखना चाहिए, एक हो। डॉक्टरों में फिरने से कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। हर डॉक्टर नए सिरे से अपना तजर्बा करेगा। एक डॉक्टर को उसको आपकी तबीयत का पता होगा, कौन सी दवा चलती है, कौन सी नहीं चलती, कब क्या हो जाता है आपको, इस तरह इनको पता होता है कौन सी ग़िज़ा माफिक कौन सी नहीं। तो वो आपको जल्दी मतलब इसकी तशखीस आपके मर्ज की इसमें हो सकती है।
तो उसी डॉक्टर से शक पड़े ना कोई ऐसी तकलीफ है तो डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, डॉक्टर दियानतदार ढूंढना चाहिए। अब दियानतदार डॉक्टरों की भी बहरहाल वो तलाश गुमशुदा की तरह का मतलब मसला है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ शायद सब समझते होंगे। डॉक्टरों को भी चाहिए जो मतलब गलत इलाज करते हैं, गलत मशवरे देते हैं, गलत दवाएं लिख कर देते हैं, इनको उम्मत की जानों से नहीं खेलना चाहिए। रोजी देने वाला अल्लाह है, आपके मुकद्दर में मिलकर ही रहेगी। आपके हाथ से कोई छीन लेगा, मुकद्दर से नहीं छीन सकता। तो क्यों ऐसा करते हैं, लोगों की जानों से क्यों खेलते हैं? तो आज हम इस बात पर डन करते हैं। वैसे हम अमीर सुन्नत तो समझा ही रहे हैं, वैसे जब से हम मदनी मुज़ाकरे सुन रहे हैं। अब हाज़रीन और नाज़रीन 2-3 नियतें ज़रूरी कर लें कि जब आप खाना खाएं तो अच्छी तरह चबाएं, ताकि वो जो हाजिम लुआब है, जैसा कि हमें बताया गया कि जो हाजमे में मदद करता है, वो हमारे निवालों में वो शामिल हो जाए, और फिर उसके साथ जब ये उतरेगा तो हमारे मैदे वगैरह में ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह उम्मीद नहीं करेगा। दूसरा, बड़ा निवाला लेने के बजाय छोटे निवाले ले। अब छोटे निवालों का प्रॉब्लम ये है कि छोटे निवाला समझ नहीं पड़ते, अपने मुंह का साइज के मुताबिक बंदा निवाला बनाता, करे तो क्या करे, छोटा क्या समझ नहीं पड़ती। ये हकीकत है, छोटा यूं करते हैं जैसे कि रोटी का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर इसको तोड़ा, दूसरा रखा, बाद में 3 भी रखते हैं, यूं करके यूं लपेट कर इसको छोटा कर देते हैं, डाल दिया, 2 टक मारे पूरा एक पाव रोटी। अब इसमें ये होता है कि मौके मौके से ये चबाने का भी सिस्टम होता है। कभी ये ज्यादा भी चबाते होंगे, छोटा निवाला भी लेते होंगे कभी, तो अब ये कहाँ ज्यादा यानी कि खराबी होती है, जैसे यहाँ ज्यादा बीमार होते हैं, इसलिए कि एक थाल में कई सामे बैठे होते हैं। तो एक तो रोजा सही, शाम के वक्त ये कि सारा दिन नहीं खाया, ये एक ज़हन बना हुआ है, तो अब भूख भी लगी होती है, अब दूसरे भी साथ हैं, अब उसमें फिर एक थोड़ा बंदा हिर्स में मुब्तला हो जाता है कि मैं जल्दी जल्दी खा लूं, बोटी भी मेरी, आलू भी मेरा, फ्रूट कल कर दो। तो इस तरह वो जल्दी एक तो खा लेता है। बल्कि इससे पहले जो मैं तो हमारे तो नाजरीन भी है ना, जो मस्जिदों में होते हैं, वो थाले में कई लोग होते हैं, तो कबाब, समोसे या तरह तरह के फल, खजूरें, कई किस्म की नेमतें होती हैं, तो उसमें भी कई लोग चुके होते हैं, फिर अजान, फिर जल्दी जमात की, तो इसमें भी ये बेचारे हिर्स की वजह से मार खा जाते हैं, और जल्दी जल्दी 2 टक मारे अंदर, टक मारे अंदर, तो यूं मतलब ये अपना पेट खराब कर बैठते हैं। तो यहाँ मोतकिफिन भी, अगरचे हम कबाब समोसे इनको नहीं दे रहे, लेकिन खैर अभी इस वक्त तो बेचारे ये गौरबा ज्यादा है, मेरा गुमान गालिब है। अब 10 दिन आखिरी आएंगे ना, तो थोड़े पैसे वाले लोग आएंगे, बाबुल मदीना वाले, उनको मदनी मुज़ाकरों से दिलचस्पी कम होती है और रौनक होती है, मजा आता है यहाँ। तो ये बाहर बैठेंगे, अंदर मुश्किल बैठेंगे, बाहर बैठेंगे, इनके दोस्त आएंगे, कोई खिचड़ा लाएगा, खिचड़ी नहीं है, खिचड़ा, खिचड़ा खिचड़ी में जमीन आसमान का फर्क है। खिचड़ी लाए तो मरहबा, खिचड़ी बहुत अच्छी है, खिचड़ा लाते, अच्छा वो लाएंगे, वो रोल, शामी कबाब, तो बारबेक्यू, सेकी हुई तली हुई बोटियां, तरह तरह की चीजें ये लाते हैं, और ये लोग ये खाते हैं, जो मैंने सुन रखा है। तो ये भी फिर ज़्यादा बीमार तो पड़ते होंगे, अंडरस्टूड है। तो ये सारे मनाजिर यहाँ होते हैं हमारे यहाँ, तो अल्लाह करे कि ये मालदार भी आए, सबके मदनी मरकज सबका है, लेकिन ये कि गरीबों का दिल जले कि ये बेचारा मतलब वो समोसा देखने के लिए तरस जाए, पूरे महीने में ज़ियारत ना हो, और आप उसके सामने बड़े बड़े समोसे खाएंगे, इनका दिल तो होगा ना कि यार मुंह में पानी भी आएगा, इनकी नज़र भी लगेगी बाजों की, तो आप हॉस्पिटल के बेड पर भी आ सकते हैं। तो यूं मतलब यहाँ आकर हम तो कोशिश यही करते हैं कि कम से कम मेरा बस चले तो इनको उबला हुआ खिलाऊं, नहीं खाते यार, ये भी वो नहीं है, पीछे नहीं है किसी से, हमारे गरीब लोग भी, इनको भी तेल वाला चाहिए, मसाले वाला चाहिए। पुराने तजर्बात हैं कि अगर सादा इनको पकाओ तो ये नहीं खाते, कम खाते, बातें करेंगे, हमको माफी नहीं आता।
माफी कहाँ से आएगा? नफ्स को माफिक नहीं आता ना, सेहत को ऐसा माफिक आएगा कि मदीना मदीना हो जाएगा। तो बहरहाल ये कोशिश करनी चाहिए कि छोटा निवाला, जिसको आपकी अक्ल, जिसमें अक्ल होगी ना उसको पता होगा छोटा निवाला किसको बोलते हैं, जिसमें कम होगी उसको समझ नहीं पड़ेगी छोटा निवाला किसको बोलते हैं, और जिसमें अक्ल होगी उसको पता होगा चबाना किसको बोलते हैं। जिसमें नहीं होगी तो वो भले निगलता रहेगा, अब क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे निकल जाते हैं, छोटे बच्चे इनके हजम शायद मजबूत होते हैं, छोटे बच्चे को दो निवाला, चबाना नहीं आता, वो निगलता है, उसको हजम हो जाता है, हमको नहीं होता। तो बहरहाल ये कि इंशाल्लाह संभल कर खाएंगे, हिर्स नहीं करेंगे, भले अपना भाई खा जाए, इसार करें, इसार भी नहीं, आपके पल्ले से कौन सा आपने दिया है, इसार कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बस ऐसा खाएं कि आप इबादत अच्छी तरह कर सकें। वरना वो अभी 4 दिन हुए और 300+ मरीज हमारे इस मुस्तशफे में जा रहे हैं, ये बताया ना इन्होंने, 300 से ज्यादा। तो अब आगे क्या होगा? आगे जो दिन गुजरते जाएंगे तो ये तंदूर की रोटियां और बोटियां जो आप निगल रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है धक्के मारे हॉस्पिटल की तरफ, और आप बोले यार फिजान मदीना में तो बीमार हो जाते हैं। अरे भाई, रोजे में तो हदीस शरीफ में सुमू तस्यकू, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे, फिर रोजों में सेहत क्यों खराब हो रही है? तो ये खुद करदारा इलाज नेस्त, हाथों के किए का कोई इलाज नहीं, हम अपने हाथों से अपनी सेहत तबाह कर रहे हैं। मुफ्ती साहब से अर्ज ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ में आब ज़मज़म अपनी होटल में पीने के लिए क्या ले जा सकते हैं, और अगर वहाँ कहते हैं कि अगर वहाँ ले जाए कि तो इंतज़ामिया वाले मना करते हैं, क्या करना चाहिए? जी हाँ, जब इंतज़ामिया मना कर रही है और वो मस्जिद नबवी में इस्तेमाल के लिए आब ज़मज़म को वहाँ रखा गया है, तो उसका लिहाज रखना चाहिए, हरगिज़ बग़ैर इजाज़त के वहाँ से नहीं भरना चाहिए। अगर कोई मखसूस किस्म की कोई सबील लगती हो या किसी मखसूस वक्त में इजाज़त दी जाती हो, तो उस जगह से उस मखसूस वक्त में भर लेने में हर्ज नहीं है। और आम जगहों पर जहाँ ये मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो लोग इबादत करते हैं और ज़ियारत के लिए हाजिर होते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए जो रखा होता है, जब उसको मना किया जाता है, इंतज़ामिया के अफराद मना करते हैं, तो हरगिज़ ये लाने की ज़रूरत ना की जाए। जी बापू, आप कुछ सवाल करवाना चाह रहे हैं? जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मुनीर रज़ा अत्तारी कश्मीर से 12 माह मदनी काफ़िले के साथ यहाँ पे 1 माह एतकाफ़ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि तसव्वुफ़ की किताबें जैसे अहयाउल उलूम और क़ुव्वतुल क़ुलूब में असहाब यमीन और मुक़र्रबीन के आमाल का ज़िक्र मिलता है। असहाब यमीन और मुक़र्रबीन से क्या मुराद है? अहले जन्नत के दरजात हैं कि अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और इसी तरह मा अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, यानी ये जो दाईं जानिब वाले होंगे और फिर इनके बड़ा मर्तबा जो है वो वस्साबिकून आगे आगे होंगे, क़ुर्बत वाले होंगे। तो अहले जन्नत के जो दरजात हैं उस एतबार से इसको यहाँ पर बयान किया गया है। और नाम ये क़ुव्वतुल क़ुलूब। जी बापू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकमल शहजाद अतारी है, मैं आरावाला पंजाब से आया हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जुम्मातुल मुबारक में हदीस में आया है कि 200 मरतबा दरूद पाक पढ़ने से 200 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 200 साल उम्र होती नहीं है, तो आप इसकी वजाहत फरमा दें। इस तरह की जो बाज़ रिवायतें जैसे 80 साल वगैरह की दीगर की, तो
علماء نے ایسے مقام پر کچھ توجیحات کی ہیں، یعنی فلاں نیک عمل ہوتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر گناہ صغیرہ اس کے نہیں ہیں، فقط گناہ کبیرہ ہیں، تو اس کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے گناہ کبیرہ کے اندر کچھ تخفیف کی جائے گی. بعض نے یہ کہا کہ اس کے بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اس طرح کے جو ثوابات ہوتے ہیں اس میں اول تو یہ کہ جو معاف ہونے والے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدل اسے ثواب عطا فرما دے. نہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ 200 سال کے گناہ، تو 200 سال تو عمر ہوتی نہیں عموماً، اس سے مراد کیا؟ اصل میں اول تو اس حدیث پاک کے حوالے سے کہ یہ مسند الفردوس کی روایت ہے اور اس کی شرح تو ملنا مشکل ہے، یعنی ملتی نہیں عام طور پہ اس کی شرح، کیونکہ کسی کتاب میں عام طور پہ روایت ملتی ہے نہیں. لیکن یہ کہ اگر ہو بھی تو اس کا معنی وہی بنے گا کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ انعامات میں سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی شرح کیا بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف علی اتاری، کوئٹہ بلوچستان سے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ داڑھی رکھنے کی یہ شرعی مقدار کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس کی کیا کیا احکامات آئیں؟ جی مفتی صاحب. داڑھی رکھنا جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے، اور علماء نے دلائل کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. تھوڑی کے نیچے سے 4 انگل، ایک مٹھی کا مطلب ہے 4 انگل داڑھی رکھنا، یہ واجب ہے. اور تمام انبیاء کرام کی داڑھی ہوا کرتی ہے، اسی طرح تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام سب داڑھی والے تھے اور داڑھی والے ہیں. تو اسی طرح اس کی جو روایات ہیں داڑھی کی، اس پر پورا رسالہ امام اہل سنت نے لکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی رسائل ہیں جن کے اندر داڑھی کے حوالے سے احادیث بیان کی گئی ہیں کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو. اسی طرح صحابہ کرام کے فعل سے یہ ثابت ہے کہ داڑھی جو کاٹنا ہے وہ ایک مٹھی کے بعد ہی کاٹنی ہے، اس سے پہلے کاٹنے کا کوئی ثبوت حدیث شریف میں کسی صحابی کے فعل سے ثابت نہیں ہے. ان دلائل کی روشنی میں احادیث مبارکہ جو کتابوں میں نقل کی گئی ہیں ان کی روشنی میں علماء اہل سنت نے یہی فرمایا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مٹھی یعنی 4 انگل داڑھی رکھنا واجب ہے. جو نہیں رکھے گا، ایک بار بھی ایک مٹھی سے گھٹائے گا یا مڈائے گا، وہ گناہ گار ہوگا، اس کا عادی ہوگا تو فاسق مولن ہوگا، اعلانیہ فسق کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اب تک جس نے یہ گناہ کیا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.